Hello students, this is Priyanka from 10 Minute Tutorials. So this is my first YouTube channel and here we are going to study economics. Yeah, we are going to start with economics and geography. Then we'll see if it will be needed, then we'll start with a few other subjects also. सो ये मेरा एक पहला यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इकोनॉमिक्स की क्लासेस. सो बेसिकली आप लोग में भी सोच रहे हो क्यों सिर्फ इकोनॉमिक्स ही क्यों. सो स्टूडेंट मैंने ऐसा फाइंड आउट किया है, ऐसा मैंने पाया है कि टीचर्स इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका. इफ़ इन फ्यूचर अगर आप इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप 9th-10th में इकोनॉमिक्स को पढ़ें और बेसिकली जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो उसको आप समझो. सो इसलिए मैं ये क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ. बिफोर डैट आई वॉज थिंकिंग टू नेम दिस चैनल 10 minutes economics in 10 minutes, but after that I thought that we can start with the other subjects also. That's why I kept the name 10-minute tutorials. Okay, so student, I am going to tell you the basic concept of economics, the introduction of economics, you can say that. So yes, so for the students who are very new in class 9th, they should know what is economics, why we are going to study this, and what's the need of the economics. So yeah, you can see that this is the video for the students who are in class 9th. सो यू मस्ट बी थिंकिंग ये नई सी सब्जेक्ट कहाँ से आ गई, ये उड़ती फुड़ती सी चिड़िया हमारे करिकुलम में कैसे आ कर के आ गई है और कैसे ये एडजस्ट होगी. सो हाँ, ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है. आप कई स्टूडेंट्स डर भी रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, कैसे इससे डील करेंगे हम लोग, बट डरने की कोई बात नहीं है. इफ़ यू विल वॉच माई वीडियोज़ यू विल बी नेवर अफ्रेड ऑफ इकोनॉमिक्स. It will help you a lot. So this is the first introduction video for this economics. ओके, सो हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ साथ जियोग्राफी भी करेंगे. जियोग्राफी पे भी हम लोग काम करेंगे. सो पहले हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे. So this is the class for 9th students. So yes, here we'll talk about what is economics, why it is important to learn, and what are the connection of other subjects to economics. Okay, these are the three major concept for today's video. Okay, so here first we'll talk about the father of economics. So if we are talking about economics, then we should know everything about this. So the father of economics is known as Adam Smith. Okay, Adam Smith is known as the father of economics. And one more thing, he is the modern era economist. So ये जो है वो मॉडर्न एरा के इकोनॉमिक्स्ट हैं. और क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बिकॉज इन्होंने थियोरी दिया था. ठीक है, इन्होंने थियोरी दिया कैपिटलाइजेशन पे, फिर उन्होंने बताया क्रेडिट्स के बारे में, इन्होंने बताया इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, फिर यहाँ पे इन्होंने बात किया इनपुट आउटपुट की बात करा इन्होंने, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. और ये जो थे ये स्कॉटलैंड से थे. सो वी कैन से दैट he is the person who was from Scotland, and he was giving some basic and important theories of economics. That's why he is known as the father of economics. On other hand, if we are talking about the ancient era of Indian history, then I think you people know about Kautilya, who was from the Maurya dynasty. Kautilya. So yes, so Kautilya was also, you can say that उनको अगर हिंदी में कहें तो आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य इन इंडिया में हम लोग बेसिकली बात करते हैं, और वो बिहार से थे. बाय द वे, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार. Okay, so if we are talking about the definitions of economics, so in one line, if we are talking about the definition, you can see that economics is all about money management, you can also say. So
कौटिल्य के हिसाब से बेसिकली उनके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स था वो यूटिलिटी था आपका रिसोर्सेज का. Okay, whatever the resources we are having, okay, whatever the resources we are having in our surrounding, and how we are going to use those resources in our welfare is called economics. So in one line, the utility of wealth, here the wealth is the resources that we are having in our surrounding, is called economics. Again I am repeating, the utility of wealth is called economics. Okay, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू कौटिल्य. कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो था ये डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाई वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यस, अब 9th में जब आप लोग नया नया ऐसा सुने होंगे कि इकोनॉमिक्स आ रहा है तो कुछ लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, कुछ बहुत डर गए होंगे कि अरे यार ये क्या आ गया, ये कौन सा चिड़िया आ गया हमारे सिलेबस में, अब हम कैसे इसको पढ़ेंगे. सो डरने की कोई बात नहीं है. सो इकोनॉमिक्स जो है ये इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको वर्ल्ड वाइड नॉलेज देता है कि आप आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं. सो ये जैसे कि हमने बात करा था वेल्थ का, तो वेल्थ जो है वो रिसोर्सेज की बात करता है. सो रिसोर्सेज के अंतर्गत सब कुछ आता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज आ गया और किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं. आपने हमेशा पढ़ा होगा कि कभी कभी किस नए नए स्कीम्स आते रहते हैं, जैसे कि एजुकेशंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, या फिर अदर वेलफेयर स्कीम्स लाइक बैंकिंग सेक्टर में या फिर और भी चीज़ों में, एग्रीकल्चर्स में आते हैं. सो ये सारे जो रिसोर्सेस होते हैं, ये सारे जो स्कीम होते हैं, ये हमें इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ना है. तो ये पूरे वर्ल्ड को एक तरह से आप ग्लोबलाइजेशन आप लोग जानते होंगे. सो वो ग्लोबलाइजेशन के तहत इकोनॉमिक्स है. अगर आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स तभी आप जान पाओगे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है. सो इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड हैंड वी कैन सी डैट हाउ इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड टू, इज़ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स और नॉट. Yes, economics is related to other subjects also. So we can see that economics is very much related to geography. Okay, इकोनॉमिक्स जो है बहुत हद तक जियोग्राफी से रिलेटेड है. इसके अलावा ये सिविक्स से भी रिलेटेड है क्योंकि सिविक्स जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करता है. सो ये सिविक्स से भी रिलेटेड है. somehow it's related to history also, but not very much. Okay, not very much, but it's related to history also. So these are the subjects which are interconnected. Okay, that's why as you know that economics is the subject of SST. Okay, social science, it's the subject of social science. So it is also related to geography, it's related to civics, it's related to history somehow also. So this was the basic introduction of economics that you are going to learn in class 9th. सो आई होप कि जो 9th की स्टूडेंट होंगे, जो उनको ऐसा लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या नई सी चीज़ कैसे आ गई है. सो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है. अगर एक सिंपल सी लाइन में बात की जाए, सो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मनी मैनेजमेंट. सो वैसे भी स्टूडेंट जो कि मनी इन फ्यूचर बिजनेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है. सो ये आपका जो पहला इंट्रोडक्शन क्लास था इकोनॉमिक्स का, ये हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं. सो बेसिकली आपको जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जानने के लिए, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली उनके लिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, फिर उनके समहाउ डेफिनेशंस, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के नीड क्या है, इकोनॉमिक्स किस तरीके से अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है. इसके अलावा भी अगर कोई क्यूरीज है आपके मन में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. सो वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो टिल हियर. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब because it's my first YouTube channel. I want to grow here. अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए. और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर. ओके, 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब.
बाय बाय।